She's a champion wrestler who's won many medals for India. Sakshi Malik is a household name when it comes to wrestling, and she, along with a few wrestlers, had made very serious allegations against Brij Bhushan, the now tainted Brij Bhushan. Talking about Sakshi Malik, a gold medalist for India at the Commonwealth Games in Birmingham in 2022, won India an Olympic medal in Rio de Janeiro in 2016. There are many medals, including a 2014 Glasgow silver at the Commonwealth Games, a bronze at the Commonwealth Games in 2018, and many medals at the Asian Championships. And today, after Brij Bhushan's aide was chosen as the next wrestling boss of India, Sakshi Malik has announced that she will not compete if Brij Bhushan's aide continues to be in charge of Indian wrestling. Here's how she made that announcement. हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिज भूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। And that is how she made that announcement. There was also a sequence of Sakshi Malik, in fact, storming off that venue after the press conference. I want to play those visuals out as I speak over the visuals of how Sakshi Malik left that news conference in tears. I'll play those pictures full frame. She storms out of the press conference and she's in tears. She gets into a car and she just leaves that venue. An athlete who's won medals for India. Let's play those pictures full frame once again. Full frame. It shows that our wrestlers who've been fighting against Brij Bhushan still have no hopes. Brij Bhushan's close associate, Sanjay Singh, his name is Sanjay Singh, he's been elected as the president of the Wrestling Federation of India after he beat Anita Shioran 40 votes to 7. And the Rio Olympics bronze medalist, Sakshi Malik, frustrated there. You can see her in tears, emotional, announcing that she's quitting wrestling following Sanjay Singh being elected as the president of the Wrestling Federation of India. They've been fighting Brij Bhushan Singh on the streets of the national capital for several months earlier this year. And they said, Sakshi Malik, when she addressed the media today, said she fought this battle with all her heart, saying that they slept for 40 days on the roads and that she'd like to thank everyone who came to support our wrestlers during the protests earlier this year. But she said that if Brij Bhushan Singh's business partner, she referred to Sanjay Singh as Brij Bhushan Singh's business partner and a close aide, and if he's elected as the president of the World
Wrestling Federation or the Wrestling Federation of India. She said she would like to quit wrestling. She made that announcement once again. Listen into what she said before we begin the trending burning question. We'll play out both the sequences of her soundbite and her leaving that venue in anger. चालीस दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। Let's go across to our panelists on the trending burning question. Varun Gujjar is joining us. Varun Gujjar is a Commonwealth silver medalist, a wrestler himself, joining us live on the show. We also have Prince Advanshi, Asia heavyweight champion, FFW wrestler, joining us, and Sandeep Sharan, who is the Indian team captain for arm wrestling, joining us via video link. And in fact, we'll go across to these panelists. But you just heard, I think we lost the signal there, but you just heard a very, very troubled Sakshi Malik saying that she is going to retire from wrestling if Brijbhushan continues to indirectly have control of the Wrestling Federation. I think I have Sandeep who's through with us now. Sandeep, how do you respond to this? Is that the feeling that Brijbhushan will continue to be in control of the Wrestling Federation of India? It is a very big step back for all the wrestlers who were protesting from such a long time. Because an athlete doesn't demand anything. They just are working to make their country proud. They gave their 200%. They never think about their normal life, their occupation or anything. And if you have to retire in such a situation, then it is a very big disrespect for every athlete. Even we are feeling very sad for all these things. We were expecting like government will work and they will give some good results in the end, but now we don't have any hopes. Yes. Okay, I think we also have Prince Advanshi. Prince, what's your take? Is it a letdown for all the wrestlers who protested earlier this year on the streets of Delhi? सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब एक खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो पूरा देश वाह वाह करता है, मालाएं पहनाता है, स्वागत करता है। और जब एक खिलाड़ी के साथ ऐसा कोई काम होता है तब कौन सपोर्ट करता है और कौन आ रहा है सपोर्ट करने? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि साक्षी मलिक जी, आपने जो अपना इस्तीफा दिया है, पहली चीज तो इसको वापस लें। और क्योंकि आप हमारे भारत के खिलाड़ियों का, आने वाले खिलाड़ियों का फ्यूचर है, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि वो इस्तीफा वापस ले। और इसके साथ साथ जो भी पद पर नियुक्त होता है, देखिए पद पर कोई भी नियुक्त हो, देश का नाम जो है ना वो खिलाड़ी, गौरव खिलाड़ी बढ़ा, ठीक है। तो खिलाड़ी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और ऐसा टाइम आना ही नहीं चाहिए कि खिलाड़ी को इस्तीफा देना पड़े। तो मैं कहना चाहूंगा कि साक्षी जी, आप उस इस्तीफे को वापस ले। और जो है यही कहना चाहूंगा। और कहना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना है। अब हम और आगे फाइट है हमारी, जैसे मेरी आने वाली फाइट है 11 फरवरी की। अब मेरा तो वो भी मन नहीं कर रहा है खेलने का। ऐसे अगर बड़े बड़े खिलाड़ी इस्तीफा देने लगेंगे तो हम कैसे आगे हम अपने भारत का फ्यूचर बनाएंगे? आओ कैसे? सर ये कहना चाहता हूँ, वो भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ।
संदीप, संदीप क्या आपको लगता है कि ये जो हुआ है, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला? डू यू थिंक इट्स अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला? बिकॉज सी he wanted I know most wrestlers wanted elections, right? Elections did happen. Yes. And we know that in most sporting bodies, and it's not just with wrestling in the case of wrestling, but in most sports bodies, politicians have indirect control of sporting federations, and they continue to wield control directly or indirectly. Now, in that case, I mean, they wanted elections. Elections have happened, right? So, can you completely say that because there was an election and someone lost by 40 votes, right? Yes. जिस सिचुएशन में एथलीट आ चुके हैं कि पहले वो लोग पूरा सेक्रीफाइस, पूरा लाइफ लगा के अपनी कंट्री को प्राउड करते हैं. We give our 200% to make our country proud. We don't play for individuals or for ourselves. We play for India. I'm Indian team captain. I never think for my personal identity. I always think for my country. And after giving everything, our whole life, and उसके बाद हमें इस situation में land करना पड़े that due to politics and everything, we have to like जब एक athlete ये बोलता है कि मैं ये game नहीं खेलूंगा, you can't understand the feelings behind कि इस scenario के पीछे क्या feeling रही होगी उनकी. It is the last thing कि एक last extent है कि जहाँ पे एक athlete जा सकता है. When we lose every single hope, we don't have any hope from the system or anything, then only we think of to take such a big step. It is a very big step and a very big setback for every single athlete of India. Yeah. And the end we feels like हम अपना कितना भी मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है. we don't have any control. We are just मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है. Politics मेरे पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है संदीप और प्रिंस. Yes. संदीप और प्रिंस, मेरे पास अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है. मैं आपको बताता हूँ क्या है. Yes. ये जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन फॉर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 21 दिसंबर को हुआ था. ये 21 दिसंबर को हुआ था. और जो रिजल्ट्स है आज हुआ था. प्रेसिडेंट इज संजय कुमार सिंह प्रेसिडेंट है. Yes. और जो सेक्रेटरी जनरल जो सेकंड सीनियर मोस्ट जो है वो है प्रेमचंद लोचाब. Yes. ट्रेजरर जो है वो है सत्यपाल सिंह देशवाल. और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो है श्री देवेंद्र. तो 4 जो चुने हुए हैं अभी, मैंने पढ़ा 1 2 3 4, उसमें नंबर 2 and 4 मैं रिपीट कर रहा हूं. नंबर 2 है सेक्रेटरी जनरल श्री प्रेमचंद लोचाब, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो नंबर 4 है श्री देवेंद्र. इन दोनों को बैक किए थे रेसलर्स ने खुद बैक किए थे. अगर रेसलर्स ने इनको बैक किया है तो क्या कंप्लेन कर सकते हैं प्रिंस जी? When the topmost 2 positions are still with someone else, like wrestlers were expecting that they will get a very transparent body this time, but it is not possible in the present scenario. We can't expect it. That's the only reason like wrestlers are backing off now, and they are ready to quit their whole career and everything. They are ready to give up on everything. Yeah. मैं प्रिंस जी से पूछना चाहता हूँ. प्रिंस, आई जस्ट रेड आउट द नेम्स, राइट प्रिंस? Today or tomorrow they will. जी. प्रिंस, ये देखिए, 4 पीपल वर इलेक्टेड. 4 लोगों को चुना गया है आज. 4 लोगों को, उसमें से नंबर 2 और नंबर 4 सेकंड सीनियर मोस्ट जो है और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, दोनों को बैक किए थे वो रेसलर्स ही बैक किए थे. तो अगर ऐसा है तो क्या आरोप लग सकता है? मैं जानता हूं, रेसलर्स ही बैक किए थे इनको, रेसलर्स ही बैक किए या कि ये सही नहीं है? हाँ जी. तो अगर रेसलर्स ने बैक किए थे इनको तो ये इलेक्शन तो हुआ था या नहीं होता? Sir, we still want that wrestlers community, and there should be a meeting of the politicians, and there should everything should come at a common point. Like our wrestlers should play in future, they should make our country proud. मैं तो ये कहूंगा They should खिलाड़ियों को किसी get भी another politics को पढ़ना ही नहीं chance. चाहिए, And अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए. नहीं प्रिंस शरण एक मिनट. प्रिंस स्पीकिंग. प्रिंस, अगर रेसलर्स ने इन दोनों को बैक किया था और इन दोनों को इलेक्ट भी किया है, हाँ,
मैं सुन नहीं पा रहा हूं। रेसलर्स ने सेक्रेटरी जनरल प्रेमचंद को बैक किया था और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र को बैक किया था, तो उन्हीं के कैंडिडेट्स को चुना गया है। सिर्फ जो प्रेसिडेंट है उनका भी इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शंस तो हुआ है ना सर। साक्षी मलिक का भी यही तो कहना है साक्षी मलिक का भी कि ये जो चुने हुए प्रेसिडेंट है वो इनके दोस्त है और बिजनेस पार्टनर, शायद आई थिंक ये मैंने सुना है, तो ये यही कहना चाह रहे हैं वो भी। बट सर ये जो कह रही है साक्षी मलिक जी, तो आप सर इस पे भी तो गौर करिए ना, ये भी तो बहुत गौर करने वाली बात है ना। यस, नो इट इज, ये तो बोल सकते हैं आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, ये तो सही है सर। ये बड़ी गौर करने सर, कैन यू से दैट ही बड़ी गौर करने वाली बात है सर। ये पूरा देश देख रहा है सर इस चीज को सर, बहुत गौर करने वाली बात है। साक्षी मलिक वो उसने अपना कॉस्ट्यूम, अपना शूज रख दिया है सर, वो फीलिंग देगी ना खिलाड़ी की। हम भी ये बेल्ट जीत के ला रहे हैं सर, एशिया चैंपियन की बेल्ट है। नहीं, बहुत दुख की बात है, प्रिंस जी बहुत दुख की बात है, क्योंकि अभी मैं नहीं, ये बहुत दुख की बात है। मैं भी वही बोल रहा हूं, बहुत दुख की बात है कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है साक्षी मलिक जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों जीत चुकी है। एशियन चैंपियनशिप्स में भी ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीत चुकी है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों जीत चुकी है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप्स में 210 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में गोल्ड भी जीती है 2012 में। तो शी इज अ डिस्टिंग्विश्ड एथलीट फॉर इंडिया, शी इज वन ऑफ इंडियाज एसेट्स, राइट? लेकिन मेरा प्रश्न ये है संदीप, माय क्वेश्चन इज, कैन यू से दैट इट विल स्टिल बी ब्रिजभूषण हु विल कंट्रोल इंडियन रेसलिंग? सर आई वांट कि जो एथलीट्स की डिमांड है वो हमारी जो पॉलिटिक्स सिस्टम है उसे समझना चाहिए, कॉमन पॉइंट पे आके इन चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। बिकॉज साक्षी मलिक इज एन एथलीट जिनको इंडिया में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, एंड इन चीजों को इतना एक अच्छे ग्राउंड पे हम सेटल कर सकते थे, इन्हें कॉमन ग्राउंड पे ला सकते थे कि चीजें इस एक्सटेंट तक आनी ही नहीं चाहिए थी, स्पॉइल ही नहीं होना चाहिए था। एक एथलीट को पब्लिकली ओपनली आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपना करियर गिव अप करना पड़ रहा है। लाइक हमारे सिस्टम को इन चीजों को बहुत पहले अच्छे से समझ के इन्हें रिजॉल्व करना चाहिए था, बिकॉज आवर एथलीट्स आर प्राउड। यस, अभी आपको लगता है प्रिंस की अभी भी ये जो आंदोलन था वो जारी रहेगा? ग्राउंड पे आके रिजॉल्व हो जाए, they will continue to protest, Prince. They will continue to fight the system. सर लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, देखिए लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि आंदोलन तो चलते ही रहेंगे, लेकिन सर रिजल्ट क्या निकल रहा है, खिलाड़ियों को क्या मिल रहा है, खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है? सर ऐसे देश को आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े स्पोर्ट्स में? ऐसे जो खिलाड़ी रो रहे हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने ला रहे हैं कि भाई हम रिटायर ले रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं रेसलिंग, तो सर आगे फ्यूचर का क्या होगा? सर मेरे को इस बात का कोई तो जवाब दे। सर फ्यूचर का क्या होगा हमारे देश में? रेसलिंग के फ्यूचर का होगा क्या? रेसलिंग छोड़िए सर, किसी भी स्पोर्ट्स का क्या होगा सर आगे? सर ये क्वेश्चन कोई भी जो भी नियुक्त हो रहा है सर, इस क्वेश्चन का संदीप आप भी एक टीम कैप्टन है। संदीप इज ऑल्सो टीम कैप्टन। संदीप भी एक टीम कैप्टन है। मैं संदीप से पूछना चाहता हूँ, संदीप एज समबडी हु रिप्रेजेंट्स द कंट्री, क्या आपको डू यू फील लेट डाउन टुडे? क्या आपको बुरा लगता है कि ऐसा हुआ है? मुझे सर, मैं भी खुद पॉलिटिक्स का स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा शिकार रहा हूं, एंड हमने भी ये चीजें बहुत लेवल पे फेस किया है, एंड वी कैन पर्सनली फील इट कि यार ये एक्सेंट नहीं आना चाहिए। एक एथलीट लिटरली कि आप सोच भी नहीं सकते, इंटरनेशनल मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, एशिया मेडल और ओलंपिक मेडल लाने के लिए कितनी मेहनत करता है, एंड उसके बाद उसे अपनी एनर्जी स्पोर्ट्स में लगाने की बजाय पॉलिटिकल भी वो मजबूर फील करे, वो हैंडीकैप फील करता है एक तरीके से, कि वो सब कुछ कैपेबल होते हुए भी अपनी चीजें अच्छे से बाहर नहीं ला पा रहा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आई पर्सनली फील कि ये चीजें इस लेवल पे नहीं आनी चाहिए थी, बहुत पहले सब रिजॉल्व होना चाहिए था कॉमन ग्राउंड पे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना अच्छा है तो हमें मतलब सारी चीजें इस तरीके से हैंडल करना चाहिए था कि एक कमेटी बने और उससे एक न्यूट्रल ग्राउंड आना चाहिए था कि किसी को भी ये चीजें
एक्सप्लॉइट नहीं करनी चाहिए थी इस लेवल पे जाके, कि मतलब एथलीट्स तो अपना पूरा रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट सब खो ही चुके हैं, अगर उन्हें ये कहना पड़ रहा है कि हम अपना करियर यहीं पे दी एंड कर रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कोई मतलब हम सेटबैक सोच ही नहीं सकते। पूछने का बात ये भी है कि ये क्या ब्रिजभूषण सिंह सोचना चाहिए सर, गोइंग टू एंड करियर, सॉरी। नहीं प्रिंस, ये सुनिए, ये जो इलेक्शन थी ना, ये जो इलेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है, ये जो इलेक्शन थी, सर सोच विचार नतीजा ये हुआ कि ब्रिजभूषण सिंह के जो, एक मिनट, नहीं ब्रिजभूषण सिंह का जो दोस्त है संजय सिंह, उनको 40 वोट मिली, 40। और जो दूसरा कैंडिडेट थे अनीता श्योरान, उनको 7 वोट मिली है, ओनली 7, 40 वर्सेस 7। जो ऐसा है सिचुएशन कि ये इलेक्शन तो हुआ और इलेक्शन में 40 संजय सिंह को मिला, 7 वोट अनीता श्योरान को मिला, राइट? तो आप पूरा बॉडी को आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि उनको इलेक्शन चाहिए था और इलेक्शन हुआ है और नतीजे ये है? प्रिंस, सर नतीजों की क्या बताऊं मैं आपको। मैं तो सर अब भी इसी बात पे अड़ा हुआ हूं कि साक्षी मलिक को अपना इस्तीफा वापस लेना चाहिए, जो इन्होंने अपना सारा कॉस्ट्यूम दिखा के और शूज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोल दिया है कि मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ। सर ये प्रेसिडेंट कोई भी बने सर, प्रेसिडेंट नहीं चलाता है देश को, खिलाड़ी चलाता है सर। मैं मानता हूं सर ये बात। सर भारत की सबसे पुरानी प्रो रेसलिंग कंपनी एफएफडब्ल्यू में मैं एशिया चैंपियन हूं, और सर मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि रिटायर मत लो, आपका बहुत लाइफ है अभी, आपको देख के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन हो आप लोगों के। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं सर, कोई भी नियुक्त हो सर, मेरा ये मानना है कोई भी नियुक्त हो, ब्रिजभूषण जी हो या कोई भी हो, XYZ सर, कोई भी हो, मैं तो खुला बोल रहा हूं सर, कोई भी नियुक्त हो, और खिलाड़ी को सर अपना कॉन्फिडेंस लूज होके ऐसे रोना नहीं चाहिए सर। एक खिलाड़ी की वजह से सब खिलाड़ी एकदम से टूट जाते हैं सर, वो टूटी हुई है सर पूरे तरीके से, आप उसके आंसू नहीं देख रहे हैं सर। No, मैं आपसे सहमत हूँ प्रिंस जी और संदीप. It's heartbreaking to see the pictures. In fact, let's also play out the pictures of Sakshi Malik when she broke down today in that news conference while saying that if Brijbhushan's aid or Brijbhushan indirectly controlled the Wrestling Federation of India, the WFI, she will quit wrestling. For someone who's won medals for India at the Olympics, she's won a medal for India at the Olympics, at the Commonwealth Games, at the Asian Championships. She needs no introduction. Sakshi Malik was on the streets of Delhi along with the other wrestlers asking for justice, and today when she has to come out in a press conference and say that I'm giving up wrestling because I don't want to be in a federation where Brijbhushan Singh's aid continues to call the shots, it's something that we must all think about. Sandeep and Prince, thank you for joining us on the Trending Burning Question.